which I have to sit with you and really explain to you what it is, how it is. It is going to come. You see, the biggest advantage with these people is why United States of America, because there's so much of money is, क्या बोलते हैं, R&D, क्या बोलते हैं, research and development. So we also, I feel, coming that there should always be in every company who can afford, I feel, should have separate money, not only for charity, but for R&D. More, R&D is very, very important. So that there is constant money being invested in R&D so that the new ideas, new concept, new ways to make buildings, new ways to develop in a cheaper way but stronger way, people. So that is very important. So over there is constantly R&D going on. Constant R&D in every business. इतना पैसा लोग रखते हैं उसके अंदर. Like for Jeb, the way he is, the kind of businessman he is, he's the richest man, the owner of Amazon. Am I right, wrong? Yeah. Sir, sorry. And they are. It's that's what they do. They are constantly reinventing, thinking of better things. ये नहीं है कि अरे पैसा आगे बैंक वालों का भी इसका interest ना हो. You have to keep on reinventing, reinvesting, and not only in the same business but to learn and make it much better. Thank you, sir. एक सेकंड सर, आपने 2 फिल्में की सर. हाँ, अभी आपके सर, sorry, मैं माफी चाहता हूँ, सर. सर आपने 2 फिल्में की, वन मिस्टर इंडिया एंड दूसरा नायक. हाँ जी. सो नायक में आप बने थे 1 दिन का सीएम. तो माय क्वेश्चन वुड बी, अगर आप 1 दिन का प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर 1. एंड मिस्टर इंडिया में अगर आप अभी इनविजिबल हो जाए, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री आप बने थे, हाँ. लेकिन अगर प्रधानमंत्री आप बनते हैं तो व्हाट वुड यू डू, फर्स्ट 2-3 थिंग्स. जीएसटी देना निकाल देंगे. नहीं, इसी the thing is, वो मैं कोशिश करता हूँ, मैं जा रहा हूँ दिल्ली. You see, because to be honest with you, these are all, because you are living in this country which is 1.3 billion people. It's a very diverse country. It's a difficult country. So many religions, so many, भाषा, हर जगह languages, हर आदमी का taste अलग है. So it's a tough country to rule and handle. But still, our country has the power, it bounces back. It bounces back. And it's a true democracy. Great democracy. कुछ ना कुछ जबरदस्त होते हैं और चल ही रहे हम लोग, जबरदस्त चल रहे हैं. आज अपना इकोनॉमी देखो, it's you just see what they're predicting, really, really positive things. I'm a very positive person. I'm not और ज़्यादा मेहनत करो, GST भी दे दो, और मेहनत करो. That kind of, instead of cribbing and getting depressed and getting upset and all, और मेहनत करो, और करो. And I feel, to be honest with you, the cleaner you are, the better you are. This is my feeling. In long run में it will help you. I feel. ये थोड़ा बहुत उससे करके, I think it for the future. And today repetition is very important. It spreads like wildfire. If you have a great reputation as a clean company, everything is clean, आपका business बढ़ता ही रहेगा. पहले होते थे बहुत sharp है यार, ऐसे घुमा फिर के क्या कमाया इसने यार, गायब. वो I think वो time थोड़ा सा भी change हो गया. ओके, कभी आपने इतने पिक्चर्स किए हैं, कभी शूट करने से पहले या किसी कैरेक्टर या किसी एक्टर के सामने पसीने छूटे? अभी पसीना छूट रहा है. हाँ, कभी कोई पिक्चर आपको याद हो कि एक्ट करना मुश्किल है, ये एक्टर है या किसी के सामने, मैं आपको और इजी बना देता हूँ, कोई एक्ट्रेस के सामने. हाँ, वैसे हुआ है. मैं जब जाबाज कर रहा था, अच्छा, डिम्पल जी के साथ, और उनके साथ मेरा लव मेकिंग सीन था, और मैंने बॉबी देखी थी, ह्यूज फैन, एंड शी वाज मिसेस राजेश खन्ना, बट उसके बाद देन दे सेपरेटेड. But my respect and awe was there for her. तो उनके साथ जब करना तो मेरे पसीने छूट गए थे. You understand me? But obviously being a professional, what happens is when the camera is switched on, then you forget everything. Switching on से पहले थोड़ा बहुत, obviously, till today also, I am anxious
and I am sometimes nervous also. But I think that helps me work even harder. But एक बार काम शुरू हो जाता फिर मैं जोन में चला जाता. Then I forget everything. आप सबको पता होगा, I think their family was living in a garage, and then they shifted to Chawl, and then posh bungalow. मतलब so what a journey. मैं सर आपको मिलने के लिए हम सब टीम के साथ बैठे थे कि यार क्या पूछा जाए. तो जैसे जैसे अंदर चले गए तो हमको लगा था ये तो हमारे में से ही इज लाइक अस. व्हाट अ स्ट्रगल व्हाट ही हैज विटनेस. मतलब मुझे पता है आपने लिखा है कि आपके पास टैक्सी का पैसा नहीं था आपको आपकी गर्लफ्रेंड को मिलने जाने के लिए, ये टाइम था. तो सुनीता जी शायद आपका टैक्सी का पैसा देती थी और बाकी चेंज वापस देता नहीं था मैं. 100 रुपये लेता था, 30-35 रुपये होता था, 60 रुपये पॉकेट में रख देता था. बोल देता था मगर बोले ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो उसी से आऊंगा. और यहाँ जितने यंगस्टर्स हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई थिंक मुझे हम मैं शेखर बात कर रहे थे कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग एंड अनिल कपूर. तो सब लोग बोले कि इतना पैसा होगा, ब्रांड होगा, कितना होगा. ही इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, ही इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट. लेकिन इसके बाद जो फेलियर वाली जो बात कर रहे हैं तो उनसे ये अंदर से जहन से निकलता है. एंड सेकेंड थिंग, ही वाज डिनाइड एडमिशन इन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट. तो यहाँ जितने यंगस्टर्स डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो अब उन्होंने बताया, तो ही नो एग्जैक्टली हाउ टू फेल बेटर. आप क्या सीख रहे हो फेलियर में से, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. हेड्स ऑफ सर, आई थिंक वो आपको कैसा लगा था? आई थिंक उस टाइम जब आप कॉलेज ड्रॉप आउट हुए, रीजन हमको पता नहीं है, देन you were denied admission in the Pune Film Institute. That was like a एकदम shock. Yeah, it was a big very I couldn't believe it. मैंने वो भी मैं रिटन एग्जाम में फेल हो गया था. मैंने यार एक्टिंग और रिटन एग्जाम से क्या लेना है. मैंने यार क्योंकि मैं ज्यादा मेरा ये सब दूसरी चीजों में नॉलेज नहीं, मेरा एक्टिंग में नॉलेज है, तो एक्टिंग के बारे में पूछो या वो कैमरा ऑन करो या मैं एक्टिंग करके बताता हूँ. वो रिटन एग्जाम में फेल हो गया मैं, तो मैं पहुंच गया पुणे इंस्टीट्यूट. गिरीश कर्नाड वाज द प्रिंसिपल एट दैट टाइम ऑफ. आई सेड सर अभी बोलो, अभी एक्टिंग करके बताता हूँ. ये करो ना यार, मेरे को एग्जाम में क्यों फेल कर दिया आप लोगों ने. तो बड़ा क्वेश्चन बोला सर, रूल्स आर रूल्स, रेगुलेशन रेगुलेशन, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग इवन मोर डिटरमाइंड. और छोटा मुंह बड़ी बात, आई रिस्पेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु कम आउट फ्रॉम पुणे इंस्टीट्यूट, बट आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ये फेलियर है और ये यहाँ है. करेक्ट है ना, करेक्ट है. बाकी आप लोग उसका जाके देखना कौन कौन वहां से पास हुए. तो जैसे हमारे चेयरमैन एवरीडे मॉर्निंग जाते हैं साइट पे, और इस थिंग्स के साइट पे जाओ, फिजिकली काम देखो, खाली बुक में से या फॉर कॉर्नर्स ऑफ वॉल में से ऑफिस में बैठे हुए बिजनेस नहीं होगा. दैट इज हिज मैसेज. सर आप एक दो चीज आपकी दूसरी भी है, कई लोगों को पता नहीं होगा, ही इज अ सेमी क्लासिकल सिंगर एंड अ पेंटर टू. जो मैंने आज सुबह ही पेंटर नहीं हुआ यार, मैंने आपका मजनू भाई वाला नहीं, मजनू भाई वाला तो हाँ हुआ वैसा पेंटिंग करते मजनू वाला. जब भी मैं ब्रश उठाता हूँ माइक नहीं उठाता. सर एक सॉन्ग आपका वो जो पटियाले वो कुछ वो 7 दिन में आपने कौन सा था? दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग यू sang, और मे बी चमेली की शादी. देखो मेरा क्या है, एक चीज मैं आप सबको बताऊंगा, एक चीज हमेशा क्लियर रहना चाहिए, गलत फहमी में नहीं रहने का. कुछ लोग क्या गलत फहमी के शिकार है, मैं उनमें से नहीं हूं. तो मेरे को बिगिनिंग से गलत फहमी ये नहीं थी कि मैं सिंगर बन सकता हूं. तो मैंने एक आध 2 फिल्मों में गाने की कोशिश की, और जब मैंने अपनी आवाज सुनी और मैंने अपना सुर सुना तो मैंने बोला यार तू भैया एक्टिंग कर, गाना बजाना, किशोर दा, रफी साहब, ये सब जितने महान सिंगर्स हैं, फिर उसके बाद नए जो सिंगर्स आए हैं, सोनू निगम साहब, अपना उदित नारायण, तो उन्होंने सारे मेरे गाने गाए. और मैं इंसिस्ट करता, काफी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को चने की चाल में चढ़ा भी रहते थे, गाले यार गाले, क्या आवाज है. तो मैंने नहीं बाबा, मेरे को एक्टिंग कराओ, ये मेरे से बेटर है और इनके गाने से मेरे करियर को फायदा होगा. तो जितने भी गाने इन्होंने गाए, बड़े बड़े 1942 का कुमार सानू ने सारे गाने गाए. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कुछ ना कहो, फिर बेटा के गाने, कोयल सी बोली,
धक धक करने लगा। मिस्टर इंडिया के गाने हैं, जिंदगी की यही रीत है। आप बिलीव नहीं करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, किशोर दा और लक्ष्मीकांत बेहरा का झगड़ा हो रहा था और वो बोले थे मैं किशोर दा से गाना नहीं गाऊंगा, और किशोर दा बोलते लक्ष्मीकांत बेहरा के साथ मैं जिंदगी में नहीं काम करूंगा। तो मुझे लगा यार ये तो मेरे करियर का सवाल है। तो मैं किशोर दा के घर पे पहुंच गया और मैंने लक्ष्मीकांत बेहरा को भी कन्विंस किया, किशोर दा को भी कन्विंस किया। मैंने बोला देखो आप लक्ष्मीकांत जी के लिए मत कीजिए, और लक्ष्मी बोला आप मेरे लिए कीजिए, मेरे करियर का सवाल है। और वो पहला गाना गाया, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। मिस्टर तो यू नो हाउ टू गेट प्लान पासिंग कैसे करवाना है, गवर्नमेंट ऑफिस में संगीत जी कैसे जाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मेरी फिल्म रिलीज हुई फन खान, उसमें हमने गाना, पुराना गाना है रफी साहब का, बदन पे सितारे। बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो। तो ये गाना जो है किससे, उन्होंने कोई एक सिंगर से गवाया था। मैंने बोला यार नहीं यार, सोनू निगम ही गा सकता है। रफी साहब की अगर आवाज टक्कर में कोई है, हम लोग ऑब्वियसली रफी साहब की टक्कर कोई नहीं ले सकते। तो फिर यही प्रॉब्लम, सोनू निगम का अमित से झगड़ा, उससे झगड़ा, टी सीरीज से झगड़ा। मैंने बोला अमित अपना सोनू तो यार तू मेरे लिए कर रहे, मेरे करियर के लिए तो कर रहे। तो मैं तो अपने काम के लिए, अपनी चीज के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, देयर इज नो ईगो। ये राज कपूर साहब से मैंने सीखा। कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको काम अच्छा करवाना है किसी से, अगर कोई अच्छा है आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर उसको जाके थोड़ा सा ईगो अपना नीचे करके, उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर से, प्यार से बात करके, स्माइल करके, चार्म करके, सब कुछ करके आप करवा सकते हो काम। उसमें ईगो रखें, अरे कौन जाएगा उसके पास है, इसको ही ले रहे यार, ये अपना बच्चा है यार, पैसा भी नहीं लेने वाला वो बच्चा मरवा देगा। इसको चांस मैं देता हूँ, इसकी लाइफ में बनाता हूँ। अरे उसकी लाइफ नहीं, तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपको कमिटमेंट, जो वर्क कमिटमेंट आपको जो पता है, जो उसका भी खाली एक मतलब जैसे छोटा है लेकिन इतना बड़ा एग्जांपल है। आफ्टर मैरिज हनीमून करने के लिए अनिल कपूर साहब ले गए थे। व्हाट वाज दैट? ये आपको कैन यू बिलीव दिस? और जिस तरह से क्वेश्चन, ये इसका क्वेश्चन इसने बड़ा डेंजरस तरीके से किया। पर ये था कि you see me and my wife, we knew each other since many years. We were friends. हम लोग दोस्त के बाद we started dating and then we fell in love and then I got married. But I had already committed my work. तो मैं अपना जो मैंने कमिटमेंट दी थी शूटिंग की, वो मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था। शादी हो गई तो मैंने लेट मी फिनिश माय कमिटमेंट। सो शी सेड अच्छा तू जा काम करने के लिए, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, just to have a holiday. So she went to have with her friends, my younger brother also was there, and her friends, she went to Europe, और मैं शूटिंग करने, मेहनत मजदूरी करने गया। Work is God. Great, excellent. और उसके बाद अपना इसी वो छोटा सा हनीमून था यार, 30 दिन का, 50 दिन का, 40 दिन का, और हमारा हनीमून तो 40 साल से चल ही रहा है। क्या बात, excellent. 45 years. It's going on since 45 years. We are together since 45 years. Ladies and gentlemen. इसको बोलते हैं नहीं, it's not only love, it's beyond love. It is loyalty, it's friendship, it's companionship, it's respect for each other. Super. All these things happen. Sir, अभी I think Shekhar will ask you some rapid fire question. Rapid fire करो यार. पर ऐसा है कि हमारे क्रेडाई के ये नेटकॉन में 3 साल पहले संजय दत्त साहब आए थे। क्या बात कर रहे हैं? तो उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बोली थी जैसे आप सब बता रहे हो, फिर उसमें से उनकी बायोपिक बन गई और हिट भी हो गई। तो आप आए हो तो आपकी बायोपिक जरूर बनेगी। क्रेडाई का ये मेरी बायोपिक को देखने नहीं जाएगा। सर आपकी बहुत बोरिंग एंड मुश्किल है। Because ना तो मेरे ना कोई लफड़े हुए ना मेरा कुछ हुआ, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आर्म्स के लिए गर्लफ्रेंड्स शायद नहीं। अरे नहीं, बट इसी बायोपिक में क्या होता है, people want to not for I'm not saying anything else. अच्छे लोगों को भी और बुरे लोगों का ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अच्छे और सब बुरे, you understand?
पर ये मैं चैलेंज से बोलता हूँ मेरी बायोपिक नहीं बनने वाली। हाँ जी, सर आपको जस्ट शूट यू सम वर्ड्स या रैपिड फायर, जो मैंने सही में मैं जाया ऊपर गया, मैंने बोला सर ऐसा रैपिड फायर करना है, मुझे बताओ ही मत, अगर करना है तो जस्ट आस्क ऑन द स्टेज। सो हाउ इट्स कॉल्ड, एक सर आई विल स्पीक ऑफ वर्ड्स, अफेयर्स। हाँ जी, अफेयर्स, अफेयर्स मैनी, फियर, fear God, ग्रेट, फैमिली, my family, my. This world is a family. This country is my family. You are family. फैंटास्टिक, कॉम्पिटिशन, Healthy, ड्रीम, big, सुपरस्टार, God, people, audience. फ्रेंड्स, A friend in need is a friend indeed, and I feel the more friends you make, good ones, चाहे वो 2 हो या 3 हो या 4 हो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. That is enough, I feel. So, for me, my wife is my friend. People who are with me, my team, my manager, my trainer, they're all over here. My bodyguard, my assistant, my makeup artist, who's doing my makeup since last 37 years, 38 years. So, my people the team, my family, my staff, they're all my friends. I've treated everybody who works in my office. वो डांटते रहते मेरे को. I've given them that much of freedom that they can fire me. You know, sometimes. मगर जब मैं भड़कता हूँ, but that is once in a way. So they all are like my friends, I feel. सर फिटनेस का तो सबको पता है, वो इट्स वेरी वेरी क्वेश्चन, पर एक चीज आप बताओ हमें, आप डिस्ट्रेस कैसे होते हो, मतलब हाउ यू कूल योरसेल्फ, कूल माइंड कैसे रखते हो, कितना भी मतलब तकलीफ है? I think the best way to de-stress is workout, exercise. Like in the morning when I got up, you know, we were discussing a few things. So my trainer was there and he says, तो obviously when you आपने देखा होगा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो आपकी ब्रीदिंग थोड़ी शैलो हो जाती है. आप थोड़ा सा आपका ब्रीदिंग, so you have to be very careful every day when you get up, whenever you're stressed, कि see to it that your breathing is correct. You know, that is deep from your stomach. You know, there's an app also. अभी आजकल एक breathing app किया है. अगर if you can put it on your phone is very good. If you can exercise, the breathing is very very important. So for me, I have a little bit of इसलिए खड़ा हो गया because it's a very important thing for all of us, because we all are in this kind of work business which is very speculative, which as they said in our business also, every project is like a first film. So what I think best way is to work out, exercise. Like today, as soon as I woke up, I did a lot of cardio. I did little treadmill. I did because I couldn't go out. Tomorrow morning, I'm going out. Then I did little cycling and then I swam. Swimming is very good for your breathing. So anything, go for a walk, exercise, besides the food, I think that really de-stresses me. Completely, मैं भूल जाता हूँ. रात को सोया, टेंशन के सोया, इसका टेंशन, उसका टेंशन, ये वगैरह वगैरह. सुबह उठ के 1 घंटा मार किया. And you're fresh. I think that's the best thing to de-stress is to some physical activity you have to do. चाहे वो गेम हो, चाहे वो वॉक हो, some exercise, whatever you feel, whatever makes you happy, you must. यार 24 घंटे हैं आपके पास. भगवान ने आपको 24 घंटे दिए, करेक्ट नहीं करेक्ट? आप सोते भी हो, आप खाना खाते हो, आप प्यार करते हो, सब कुछ करते हो. You do everything possible with your body. Am I right or wrong? You use your body. तो body को थोड़ा तो there should be always be me time. वो 1 घंटे में ना बीवी के बारे में सोचो, ना बच्चे के बारे में सोचो, ना कंपनी के बारे में सोचो. 1-1.5 घंटा 2 घंटा दिन में सिर्फ अपने बारे में सोचो.
क्योंकि the better you will feel, the more you will look after your family and your work. Because वो 1-1.5 घंटा it should be your me time. That's a very very important. Actually, I wanted to say that before I end this session, that this me time is very very important. Me time for all of us over here. The me time, that 1 hour, 1.5 hour, 2 hours of the day of the 24 hours should be only be for yourself. उसके बाद देखो, आप बीवी के साथ भी अच्छे रहेंगे, कंपनी के साथ भी अच्छे रहेंगे, बच्चों के साथ भी अच्छे रहेंगे, दोस्तों के साथ भी अच्छे रहेंगे. ये करके देखो आप. Fantastic, sir. Sir, I have never seen this type of conversation, sir. एकदम दिल से. सर, एक डायलॉग तो बनता है. आप मतलब एक या दो जल्दी से बताइए. सर अजय, सर अच्छा, हाँ, सर सर, हो गई सर. अजय बोलिए. सर आपको डांस किए बिना नहीं जाना. अरे भैया डांस, चलो गाना लगाओ. कौन सा गाना करना है? सर 1-2 का 4 लगा. अरे यार, आप लोग पके दिए 1-2 का 4. मैं तो पक चुका हूँ. नहीं सर. हाँ, ये एजी ओजी जब मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है. सर, you have the soundtrack, please. यस. पर सर एक शरत पे सबके करवाते हैं. सर सबको करवाओ खड़े होके. हाँ, चलो यहाँ से एक कंडीशन, आप लोग खड़े हो गए, आप लोग सब मिलकर डांस करो. चलो खड़े हो जाओ. थोड़ा ऐसे करो. Everybody, energy, get up.